داؤد پریشان تھا، وہ جلد از جلد اس قضیے کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے عمران کو یہ نہیں بتایا کہ وہ اس بلیک میلر کو پہچاننا کیوں چاہتا ہے۔ عمران کو اس کے یہاں رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور اب تک اس نے بظاہر دن بھر ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس نے سچ مچ شاداں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ شاداں بڑی پرکشش عورت تھی، خد و خال تھیکے تھے اور ان کی مناسبت سے وہ تھی بھی تیز مزاج۔ عمران اسے ابھی تک اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا تھا۔ تھیلما عمران کی حرکتیں دیکھتی اور سر پیٹ کر رہ جاتی۔ وہ روشی کی دوست تھی اور اسے عمران کے متعلق روشی ہی سے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف داؤد کی لڑکی شاہدہ سخت متحیر تھی۔ حالات ہی ایسے تھے۔ عمران اس خاندان میں بڑے عجیب انداز میں داخل ہوا تھا اور پھر کہاں داؤد کی وہ دھمکی اور کہاں یہ کہ عمران وہیں رہنے لگا تھا۔ وہ بارش میں بھیگے ہوئے آدمی کی حیثیت سے پناہ لینے کے لیے وہاں آیا تھا۔ پھر داؤد نے اسے نکالنا چاہا۔ بات اتنی بڑھی کہ داؤد نے پولیس کو بلانے کی دھمکی دی۔ پھر دوسری صبح داؤد ہی کی زبان سے سنا گیا کہ وہ اس کی ایک فیکٹری کا نیا مینیجر ہے، لیکن یہ عجیب و غریب بات پھیلنے نہیں پائی۔ اس رات شاہدہ کے ساتھ اس کی 2 سہیلیاں تھیں جو بارش تھمتے ہی اپنے گھروں کو چلی گئی تھیں۔ تھیلما داؤد کی رازدار ہی تھی۔ شادہ کو اس واقعے کی اطلاع ہی نہ ہو سکی۔ رہ گئی شاہدہ تو اسے داؤد نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے، لیکن شاہدہ کو اصل واقعات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی میز پر کھانا کھاتے۔ کھانے کے بعد اسٹڈی میں قہوہ نوشی کے لیے نشست ہوتی اور کبھی کبھار وہاں تاش بھی ہونے لگتا۔ ویسے داؤد بڑا زندہ دل آدمی تھا، ہر قسم کی تفریح میں حصہ لیتا اور یہ بات قطعی بھول جاتا کہ وہ ایک معمر آدمی ہے اور عمر کی مناسبت سے اسے سنجیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اکثر جنوبی افریقہ کے 4 مہمان بھی ان میں آ بیٹھتے۔ ان کے داؤد سے بہت قریبی تعلقات تھے۔ یہ چاروں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ ان میں عبد الرحمن بھاری بھرکم جسم والا، عمر 50 سے تجاوز کر چکی تھی اور اس کے چہرے پر رومن نیزوکٹ مونچھیں بہت بری لگتی تھیں۔ شیو کرتے وقت نچلے ہونٹ کے نیچے تھوڑے سے بال چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نسلاً خالص عرب ہے، مگر داؤد نے عمران کو بتایا کہ اس کی دادی نیگرس تھی۔ دوسرا خلیل خاور تھا۔ اس کی عمر 30 سے زیادہ نہ رہی ہوگی۔ کافی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، لیکن اسے بات بات پر ہنسی آتی تھی، اس لیے وہ پرکشش ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتا تھا۔ تیسرا جواد اکرم تھا، بہت ہی کم گوہ اور دوسروں کی بات غور سے سننے والا۔ خود اس کی معمولی سی بات بھی کافی گہرائی رکھتی تھی۔ عمران نے اسے ابھی تک دانت کھول کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ جب دوسرے کہے لگاتے تو اس کے ہونٹوں میں خفیف سا پھیلاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن آنکھیں ناچتی ہوئی معلوم ہوتی۔ اگر اس کے ہونٹوں کو نظر انداز کر کے آنکھوں ہی کی طرف دیکھا جاتا تو عالم خیال میں اس کے کہکہوں کی گونج ضرور سنائی دیتی۔ یہ بھی جوان العمر ہی تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت سوچ میں ڈوبی ہوئی سی معلوم ہوتی۔ چوتھا حابیل خلیل تھا۔ یہ یہودی تھا، لیکن داؤد کا خیال تھا کہ وہ عادات و خصائل کے اعتبار سے بہت ستھرا آدمی ہے۔ ویسے وہ بلیوں کی سی آنکھیں رکھتا تھا، جس کی رنگت چہرے کا زاویہ بدلتے ہی تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت عورتوں کو ہنسانے میں صرف کرتا تھا، حالانکہ وہ جو بات بھی کہتا اس میں بھونڈے پن کی جھلکیاں ضرور نظر آتی۔ اس وقت بھی یہ چاروں رات کے کھانے کے بعد اسٹڈی میں موجود تھے۔ قہوہ ختم کر کے ان میں سے کئی اٹھ گئے۔ شادہ اور حابیل خلیل پنگ پانگ کھیلنے چلے گئے، کچھ وہی تاش کھیلتے رہے۔ عبد الرحمن اور داؤد کسی مسئلے پر الجھ پڑے تھے اور ان میں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ عمران نے اسی کمرے کی راہ لی جہاں پنگ پانگ کی میز تھی۔ یہاں کھیل شروع ہو چکا تھا۔ کسی تیسرے کی عدم موجودگی کی بنا پر وہ خود ہی اپنے پوائنٹ گن رہے تھے۔ عمران نے محسوس کیا کہ حابیل کو اس کی موجودگی گراں گزر رہی ہے، مگر عمران کی نظریں تو شادہ کے چہرے پر تھیں اور شادہ ایسی لاپرواہ نظر آ رہی تھی جیسے اسے کسی تیسرے آدمی کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ شادہ اسے اپنا ملازم سمجھتی تھی۔ وہ کچھ اسی قسم کی عورت تھی، مغرور، بد دماغ اور تنگ نظر۔ عمران میز کے قریب کھڑا ہو کر کھیل دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ میز کی طرف سرکتا ہی جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ میز پر نہ جانے کیا دیکھنے کے لیے اتنا جھکا کہ اس کا سر شادہ کی پھینکی ہوئی گیند کی زد میں آ گیا۔ آپ بالکل گدھے ہیں کیا؟ شادہ چیخی۔ اوہ،
इमरान बुखला कर सीधा होता हुआ बोला, मैं माफी चाहता हूँ। माफी चाहता हूँ? शादा जंजलाहट में होंठ बेंच कर बोली, पीछे हटिए। इमरान 2-3 कदम पीछे हट गया। अब वो किसी फौजी की तरह तना खड़ा हुआ था, लेकिन शादा ये ना देख सकी कि इसकी दोनों आंखों से आंसू जारी हैं। वो फिर खेल में मसरूफ हो गई थी। इमरान इसी तरह खड़ा बसौरता और आंसू बहाता रहा। इस वक्त वो हद दर्जा मजाखेज नजर आ रहा था। फिर वो किनारे पड़ी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर बाकायदा तौर पर रोने लगा, मगर आवाज सिसकियों से ज्यादा नहीं बढ़ी। वैसे वो सिसकियां ही इतनी जोरदार थीं कि गेंद और रैकेटों की खटाखट इनमें दब कर रह गई थी। खेल बंद हो गया। पहले वो दोनों दूर ही से इमरान को देखते रहे, फिर करीब आ गए, लेकिन वो करते क्या, बस खड़े एक दूसरे की शक्लें देखते रहे। इमरान की सिसकियां और हिचकियां तेज होती जा रही थीं। इन दोनों के मुंह से एक लफ्ज भी ना निकल सका। शादा इतनी खफीफ हुई थी कि इसकी पेशानी की वो हल्की सी सलवट भी गायब हो गई जो तकरीबन हर वक्त नजर आया करती थी, और महज इस सलवट की बिना पर इसके खदोखाल मुस्तकिल तौर पर तीखे मालूम होने लगते थे। इमरान के दोनों हाथ बदसतूर चेहरे पर जमे रहे। इन दोनों ने फिर एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखा और चुपचाप वहां से खिसक गए। इमरान राहदारी में इनकी कदमों की आवाजें सुनता रहा जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थीं। इमरान ने अपने चेहरे से हाथ हटाए। होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट थी और आंखें बिल्कुल खुश्क थीं। इसने वो रैकेट चुटकी से पकड़कर उठाया जिससे हाबिल खेल रहा था, और जेब से पुराना अखबार निकालकर इसे इसमें लपेट लिया, और फिर इसके बाद च्युइंगम चबाना भी शायद फराइज ही में शामिल था। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज पर इमरान नहीं था और मेहमानों में से सिर्फ हाबिल वहां नजर आ रहा था, और वो शादा के दाएं तरफ था। बाएं तरफ की कुर्सी खाली थी। यहाँ खाने की मेज पर किसी का इंतजार नहीं किया जाता था। इमरान देर से पहुंचा। दाऊद ने सर के इशारे से इसे खुशामदीद कहा। बकिया लोग इसे गौर से देखने लगे। इमरान का चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो रात भर जागता रहा हो। आंखें कुछ रोई रोई सी थीं और इनमें सुर्ख डोरे बहुत वायजा थे। इमरान शादा की दाएं जानिब वाली कुर्सी पर बैठ गया, फिर इस तरह उछल पड़ा जैसे बेख्याली में इससे कोई गलती हो गई हो। इसने खौफजदा नजरों से शादा की तरफ देखा और उठकर दूसरी कुर्सी पर जा बैठा। शादा इसे बराबर घूरती रही। क्या बात है? दाऊद ने पूछा। ओह कुछ नहीं, बात यह है कि इस वक्त मेरा दिमाग, वो अपने सर पर हाथ नचाता हुआ बोला, यानी कि मेरा दिमाग कुछ यूं यूं सा हो रहा है। क्या कहते हैं इसे, रात भर नींद नहीं आई और अरे क्या कोई खास बात नहीं? जी हाँ। इसने अहमकाना अंदाज में जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। दाऊद खाने में मशगूल हो गया। फिर इमरान ने भी हाथ मारना शुरू कर दिया। शादा कभी कभी कुन्नियों से इसे देख लेती थी। हाबिल सिर्फ काफी पी रहा था और इस वक्त इसकी तवज्जो का मरकज दाऊद की लड़की शाहिदा थी। वो इसे अपने चुटकुलों और लतीफों से हंसाने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो इमरान की तरफ पलट पड़ा। आप कल रात रोने क्यों लगे थे? इसने हंस कर पूछा। मैं? इमरान ने हैरत से कहा। नहीं तो मिस्टर अबाबिल। अबाबिल की बरजस्तगी पर सब लोग बेतहाशा हंस पड़े। गुफ्तगू अंग्रेजी में हुई थी और हाबिल उर्दू नहीं समझ सकता था, लिहाजा वो समझा शायद वो लोग इसी की बात पर हंस पड़े हैं। लफ्ज अबाबिल इसके पले ही नहीं पड़ा था। बहरहाल दूसरों को महजूज होते देखकर वो भी इनकी हंसी में शामिल हो गया। फिर तो ऐसा मालूम होने लगा जैसे छत ही गिर पड़ेगी। इमरान अलबत्ता बिल्कुल खामोश था और इस तरह घबरा घबरा कर इनकी सूरतें तक रहा था जैसे इसकी हंसी उड़ रही हो। इसकी इस हरकत पर कहकहों का दूसरा दौर शुरू हो गया और इस दौर में सबके हाथ पेटों पर पहुंच गए। दाऊद को तो उठ ही जाना पड़ा। वो कहकहे लगाता हुआ वहां से चला गया। इसके साथ ही इमरान भी उठ गया था। एक राहदारी में इमरान ने इसे जा लिया। आप न जाने क्या बला हैं? दाऊद इसकी तरफ मुड़कर मुज़माइल आवाज में बोला। वो कहकहे लगाते लगाते बिल्कुल सुस्त पड़ गया था। क्योंकि असाबी खलल का मरीज भी था, इसलिए इसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल चुकंदर हो रहा था। मेरा ख्याल है कि पिछली रात आपको फिर कोई धमकी मिली है, इमरान ने संजीदगी से कहा। आपको कैसे मालूम हुआ? दाऊद भी यकबयक संजीदा हो गया। यूं मालूम हुआ कि आप पिछली रात अपने कमरे में टहलते रहे हैं। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है, दाऊद ने कुछ सोचते हुए कहा। मुझे फिर धमकी मिली है। अगर इसकी बात ना मानी गई तो वो इस इमारत में किसी न किसी को कत्ल कर देगा। इसका ख्याल है कि वो कत्ल इसकी चीरादस्ती का एक आला तरीन नमूना होगा। इसने अपने खत में ये भी लिखा है कि इसकी दलेरी और लापरवाही की सबसे बड़ी मिसाल यही है, इसने एक आदमी को कत्ल करके दिन दहाड़े इसकी लाश होम सेक्रेटरी सर सुल्तान के कंपाउंड में फेंक दी।
अच्छा तो दाऊद साहब, आप मुझे इस इमारत में कत्ल हो जाने दीजिए, इमरान ने बड़े भोलेपन से कहा। क्या मतलब? आप कत्ल का मतलब नहीं समझते? इमरान ने अपनी गर्दन पर उंगली फेरते हुए कहा। यानी कि ठख? मैं नहीं समझा, साफ साफ कहिए। अब कहिए तो अपने हाथ ही से अपनी गर्दन रेत कर आपको कत्ल का मतलब समझा दूं। इमरान ने जिलाहट का मुजाहरा किया। आप क्यों कत्ल होना चाहते हैं? दाऊद ने मुतहय्यराना सवाल किया और फिर अपने इस हमाकत आमेज सवाल पर शर्मिंदा होकर सर खुजाने लगा। इमरान की हमाकतें अक्सर दूसरों को भी अहमक बना देती थी। देखिए मिस्टर दाऊद, मगर खैर इस बात को यही खत्म कर दीजिए, इमरान ने कहा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि वो आपको क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, मगर ये तो आपको बताना ही पड़ेगा कि वो आजकल आपसे क्या चाहता है। मैं क्या बताऊं? दाऊद अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बोला। अब वो हद से बढ़ रहा है। वो चाहता है। दाऊद कुछ कहते कहते रुक गया। आप ये भी नहीं बताना चाहते? वो चाहता है कि इससे शाहिदा की शादी कर दी जाए। यानी आपकी साहिबजादी की? जी हाँ। तब तो मिस्टर दाऊद आप इसे हर हाल में पकड़ लेंगे, क्योंकि ये शादी हवा से तो होगी नहीं। शादी के लिए इसे सामने आना पड़ेगा। वो सब कुछ कर सकता है, दाऊद ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। शादी हो जाने के बाद मैं इसका क्या बिगाड़ सकूंगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आई मिस्टर दाऊद। खुद मैं भी नहीं समझ सकता कि क्या चक्कर है। वैसे शाहिदा मेरी इकलौती बेटी है और मेरे बाद वही मेरी वारिस होगी। इस तरह वो मेरे अमलाक पर कब्जा करना चाहता है, मगर शादा भी तो है और मैं भी जिंदा हूँ। शादी के लिए इसे हर हाल में सामने आना पड़ेगा। वो अब तक आपसे कितनी रकम वसूल कर चुका है? इमरान ने पूछा। 12 लाख। अरे खुदा गारत करे, इमरान दांत पीस कर बोला। पता नहीं कमबख्त इनकम टैक्स अदा करता है या नहीं। दाऊद खामोश खड़ा कुछ सोचता रहा। इमरान ने पूछा, आपको इन चारों में से किसी पर शुबा है जो खाने की मेज पर हमारे साथ हुआ करते हैं? नहीं, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। खैर होगा। हाँ तो मिस्टर दाऊद। श्श, दाऊद आहिस्ता से बोला, कोई इधर आ रहा है। इमरान की नजर राहदारी के मोड़ की तरफ उठ गई, लेकिन आने वाला कोई मुलाजिम था। वो किसी का विजिटिंग कार्ड लाया था। दाऊद ने विजिटिंग कार्ड पर नजर डालकर कहा, कैप्टन फयाज। इन्हें बिठाओ, इमरान ने मुलाजिम से कहा और वो चला गया। फिर इमरान दाऊद से बोला, अब खेल बिगड़ने का इम्कान भी हो सकता है। मेरा ख्याल है कि फिगारो के मैनेजर ने इसे भी वही कहानी सुनाई है। बहरहाल कैप्टन फयाज को ये ना मालूम होने पाए कि मैं यहाँ हूँ, वरना वो आपके पीछे पड़ जाएगा। क्यों? दाऊद इमरान को गौर से देखता हुआ बोला। आपने अक्सर जासूसी नावलों में पढ़ा होगा कि सरकारी आदमी प्राइवेट सुराग रसानों से अल्लाह वास्ते का बैर रखते हैं। दाऊद चंद लम्हे इसे घूरता रहा, फिर बोला, अगर मुझे थेल्मा पर एतमाद ना होता तो? हाँ, तो आप मुझे शूट कर देते, फांसी पर चढ़ा देते, इमरान ने हाथ हिलाकर कहा। जाइए, मुझे यकीन है कि इसकी रहनुमाई फिगारो के मैनेजर ने ही की होगी। करार का कत्ल, समझते हैं ना? दाऊद आगे बढ़ गया और इमरान फिर इसी कमरे की तरफ लौट पड़ा जहां से उठकर गया था। राहदारी में शादा से मुलाकात हो गई, जो तन्हा थी। इमरान को देखकर वो रुकी और मुस्कुरा कर बोली, अबाबील वाला लतीफा तो खूब रहा। ओह, मैं माफी चाहता हूँ, इमरान ने मिसमिसी सूरत बनाकर कहा। अभी मैंने सेठ साहब से लोगों के हंसने की वजह पूछी थी, तब इन्होंने बताया, बात दरअसल ये है कि मुझे नाम ठीक से याद नहीं रहते। बहरहाल मैं अज़ाज़ील साहब से माफी मांग लूंगा। अज़ाज़ील नहीं, हाबील। शादा फिर हंस पड़ी। अरे वो, इमरान अहमकाना अंदाज में अपना मुंह पीटने लगा। मेरे साथ आओ, शादा आगे बढ़ती हुई आहिस्ता से बोली। ये इमारत काफी तवील व अरीज थी। इसमें तकरीबन 24 कमरे थे। वो दोनों ब्लेयर रूम में आए। यहाँ इस वक्त कोई नहीं था। रात तुम रो रहे थे, शादा ने कहा। इमरान के चेहरे पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई। वो अपने चेहरे पर जज्बाती तगयरात के आसार पैदा करने का माहिर था। इसने सर झुका लिया, कुछ बोला नहीं। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी है, शादा ने आहिस्ता से कहा। इमरान की आंखों में फिर आंसू उमड़ आए और गालों पर बहने लगे, और साथ ही वो बुड़बुड़ाने लगा। मैं गरीब आदमी हूँ, एक नन्हा सा बच्चा हूँ। कोई भी मुझे समझने की कोशिश नहीं करता। मैं मर जाऊंगा, बस किसी दिन मर जाऊंगा। क्या बात है? शादा ने नरम लहजे में कहा। मुझसे कहो, तुम्हें क्या तकलीफ है? इमरान इसके सवाल को नजरअंदाज करके बुड़बुड़ाता रहा। मैंने पिछली ही रात को सोचा था कि खुदकुशी कर लूं, कर लेता,
मगर मुझे याद आ गया कि अभी मुझे एक आदमी का कर्ज अदा करना है। शादा की समझ में ना आ सका कि वो इस जुमले पर कहकहे लगाए या इजहार हमदर्दी करे। इमरान आंसू बहा बहा कर बकता रहा, कल दोपहर मैंने ख्वाब देखा था। मैं अक्सर ख्वाब देखता रहता हूँ। मैंने देखा कि मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, आप भी एक नन्ही सी बच्ची हैं और हम दोनों एक वसी जंगल में दौड़ रहे हैं। आप थक कर गिर गईं, मैं आपको उठाकर झील के किनारे ले गया। वहां चारों तरफ सब्जा ही सब्जा था और एक चांदनी की परी झील में नहा रही थी। इसने हमारी तरफ चांदनी के पानी के छींटे फेंके। फिर मैं दूसरा ख्वाब देखने लगा। इमरान सर झुकाए बुड़बुड़ाता रहा और शादा हैरत से पलके झपका रही थी। रात आपने मेरे ख्वाबों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। बखुदा मेरा अब भी यही दिल चाहता है कि आधा गैलन पेट्रोल पीकर 2-4 अंगारे निकल जाऊं। इस जुमले पर भी शादा बेतहाशा हंस पड़ी होती, मगर इमरान के आंसू इनमें अब पहले से भी ज्यादा रवानी पैदा हो गई थी। मैं एक गरीब आदमी हूँ, इमरान हिचकियां लेता हुआ बोला। जाने जहां नहीं हूँ कि ताज बेगम के लिए मुमताज महल बनवा सकूं। मैं यूं ही सिसक कर दम तोड़ दूंगा। मुझे मर जाने दीजिए। इमरान बड़ी तेजी से निकल गया और शादा मुंह खोले दरवाजे की तरफ घूरती रही। फयाज जा चुका था और दाऊद स्टडी में बैठकर कुछ सोच रहा था। इमरान के पैरों की आहट सुनकर वो चौंक पड़ा। क्या वो चला गया? इमरान ने पूछा। आपका ख्याल दुरुस्त था, वो करार ही वाले चक्कर में यहाँ आया था, दाऊद ने कहा। आज इसकी तस्वीर भी अखबारात में शाया हुई है। इसने मुझे तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या मैंने इसे कभी देखा है? मैंने इसका इतराफ किया और इसे बताया कि मैं इस शक्ल के एक आदमी को जानता हूँ, लेकिन इसका नाम करार हरगिज नहीं है। फिर इसने फिगारो के मैनेजर वाली बात बताई और इसका ख्याल भी बताया कि करार का कातिल मेरे मेहमानों में से कोई है। इस पर मुझे गुस्सा आ गया और जब इसने मेहमानों से सवालात करने का इरादा जाहिर किया तो मेरा गुस्सा और तेज हो गया। मेरे इस रवैये पर वो कुछ नरम पड़ा तो मैंने शराब की स्मगलिंग की दास्तान दोहरा दी। फिर और क्या करता, किसी तरह इसे टालना ही था। बहरहाल मैंने इसे मेहमान खाने की तरफ नहीं जाने दिया। तो गोया आप इसे बचाना भी चाहते हैं? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। हालांकि शायद 15 मिनट पहले वो इसकी बीवी के सामने रोता रहा था। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा दावा है कि पुलिस इसे नहीं पकड़ सकती और उसे पहचान ही ना सकेगी, लेकिन मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हो जाने दीजिए, इमरान जोंक में बोला। क्या मतलब? अरे हप, मैं कुछ और सोच रहा था। मगर मिस्टर दाऊद, फर्ज कीजिए आपने इसके मुतालबात तस्लीम कर लिए। कयामत तक नहीं कर सकता, दाऊद सांप की तरह फुनकारा। मेरी बात तो सुनिए, मैं फर्ज कर रहा हूँ। हाँ, तो आप इसकी इत्ला किस तरह देंगे? कैसी इत्ला? इसी की इत्ला कि आप इसके मुतालबात पूरे करने पर आमादा हैं। तुमने ये बात बहुत देर में पूछी। पहले ही पूछता, मगर कैप्टन फयाज आ गया था। मुझे एक मखसूस दीवार पर एक मखसूस रंग से एक निशान बनाना पड़ेगा, बस इसे इसकी इत्ला हो जाएगी। ये तदबीर खुद इसी ने बताई है, यानी ये तदबीर इसने अपने खत में तहरीर की थी। आहा, तो वो तहरीर थी? तहरीर नहीं, टाइप। इसने किसी अखबार से अल्फाज काट काट कर पूरा मजमून मुरतब किया था। बड़ी मेहनत का काम है, इमरान बुड़बुड़ाया। फिर इसने कहा, क्या आप मुझे वो मखसूस दीवार और मखसूस रंग नहीं बताएंगे? गालिबन निशान भी मखसूस ही होगा। हाँ, वो भी खास किस्म का है। तो आप कोशिश क्यों नहीं करते? शायद इसी तरह हम इसे पकड़ लें। लेकिन अगर नाकाम रहे तो? दाऊद बोला। नहीं, मैं इस किस्म का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। तो फिर मिस्टर दाऊद, आखिर इसे पकड़ने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? दाऊद ने तंजिया लहजे में कहा। हकीकतन थेलमा से गलती हुई है। आप इस सिलसिले में कुछ ना कर सकेंगे। आप अपना मुआवजा बताइए और घर तशरीफ ले जाइए। जो कुछ होगा देखा जाएगा। मेरी जिंदगी में तो वो कामयाब हो नहीं सकता। मैं इस वक्त तक नहीं जाऊंगा मिस्टर दाऊद, जब तक कि इसे पकड़ ना लूं। महज वक्त की बर्बादी। आप जा सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या? दाऊद आंखें निकाल कर बोला। हाँ, नहीं जाऊंगा। देखता हूँ आप क्या बिगाड़ लेते हैं मेरा। कैप्टन फयाज मुझे झूठा नहीं समझेगा। दाऊद इस नए शगुफे पर बुखला गया। थोड़ी देर तक तो इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल सकी। वो खामोशी से इमरान की तरफ देखता रहा और इमरान अब मेंटल पीस पर रखे हुए गुलदान की जानिब देख रहा था। आप वाकई बहुत चालाक हैं, दाऊद ने थोड़ी देर बाद मुस्कुरा कर कहा। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे ना? हा हा हा, मैं पहले ही समझ गया था। इमरान ने कहकहा लगाया और दाऊद भी इस कहकहे में शामिल हो गया, मगर इसका कहकहा बड़ा जहरीला था। शाम खुशगवार थी।
अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था। नारंगी रंग की धूप दरख्तों की चोटियों पर बसेरा ले रही थी। दाऊद पैलेस के अकबी पार्क में इस वक्त बड़ी रौनक थी। दाऊद के 12 मेहमान और कुछ शहरी दोस्त, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, वहां मौजूद थे। शाम की चाय वहीं थी। वो सब छोटी छोटी टोलियों में बटे हुए पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आ रहे थे, लेकिन इमरान सबसे अलग तलग तितलियां पकड़ता फिर रहा था। बाज लोग इसकी इस हरकत पर हंस रहे थे, लेकिन इमरान इतना लापरवाह नजर आ रहा था जैसे वहां इसे दूसरों की मौजूदगी की खबर ही ना हो। एक बार वो एक क्यारी में मुंह के बल भी गिर पड़ा था, लेकिन इसका शुगल जारी ही रहा। शादा इसे बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से देख रही थी। दाऊद की लड़की शाहिदा हाबील और खलील खावर के साथ थी। अब्दुर्रहमान जवाद अकरम से रंगो नस्ल पर बहस कर रहा था। जवाद अकरम कमगोह और संजीदा जरूर था, लेकिन जब किसी से कोई बहस छिड़ जाती थी तो इसके नथने फूलने और पिचकने लगते थे। बस ऐसा मालूम होता था जैसे वो इल्मी बहस की बजाय किसी लड़ाका बटियारन की नकल कर रहा हो। थोड़ी देर बाद इमरान ने अपना मशगला बदल दिया। वो अब जूही के सफेद फूल इकट्ठे कर रहा था। फिर सूरज गरूब हो गया और वो लोग इमारत की तरफ जाने लगे, लेकिन शायद शादा दीदा दानस्ता पीछे रह गई थी। पार्क में इसके और इमरान के अलावा अब और कोई भी ना रह गया था। इमरान ने वो सारे फूल अपने रुमाल में उठा लिए और वापसी के लिए मुड़ा। फव्वारे से थोड़े ही फासले पर डायना के बुत के नीचे इसे शादा नजर आई। वो बड़ी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगा। ये क्या बचपना हो रहा था? क्यों? शादा ने मुस्कुराकर पूछा। खुदा के लिए आप तो ऐसा ना कहिए, मैं बच्चा ही सही मगर जिंदा रहना चाहता हूँ। मैंने ये फूल इसलिए चुने थे। इमरान ने सारे फूल शादा के पैरों पर डाल दिए। आप उल्लू हैं, शादा ने एक झिंपी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा और यकलख दूसरी तरफ मुड़कर तेज कदमों से चल दी। मैं उल्लू हूँ, इमरान आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, लेकिन अगर ये लफ्ज तुम्हारे शोहर ने सुन लिया तो मैं इसे 3 लाख की रसीद तक ना दे सकूंगा। कैप्टन फयाज आसानी से पीछा छोड़ने वालों में से नहीं था। रात को 8 बजे वो फिर आदम का। ये लोग खाने की मेज पर थे। नौकर ने डाइनिंग रूम में आकर दाऊद को इसका कार्ड दिया। ये क्या बदतमीजी है? दाऊद नौकर पर उलट पड़ा। हजूर, नौकर गिड़गिड़ाया, वो धमकियां देते हैं, कहते हैं मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, फौरन मिलना चाहता हूँ। ओहो, अब ये वक्त आ गया कि पुलिस ऑफिसर दाऊद के नौकरों को धमकियां देने लगे हैं। दाऊद ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। इससे कह दो मैं खाने पर हूँ, इंतजार करे। क्या मामला है? शादा ने पूछा। कुछ नहीं, एक स्मगलर के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश कर रहा है। आपका इस तफ्तीश से क्या ताल्लुक? शादा ने पूछा। एक बार मैंने इस स्मगलर को धक्के देकर यहाँ से निकाल दिया था। वो हमारी लांच हासिल करना चाहता था, शराब की स्मगलिंग के लिए। शादा फिर खाने में मशगूल हो गई। शाहिदा ने भी कुछ पूछना चाहा, लेकिन दाऊद ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। मेहमानों में शायद कोई भी उर्दू नहीं जानता था, इसलिए वो खामोशी से सर झुकाए हुए खाने में मशगूल रहे। खाने के बाद दाऊद तो कैप्टन फयाज से मिलने के लिए स्टडी में चला गया और वो सब काफी के इंतजार में वहीं बैठे रहे। वैसे आमतौर पर रात को काफी स्टडी में ही पी जाती थी। शादा कुछ बेचैन सी नजर आने लगी थी। वो बार बार इमरान की तरफ देखने लगती और जब भी देखती इसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाती। यहाँ थैलमा भी थी और इन दोनों को पुरतशवीश नजरों से देख रही थी। काफी आई और इनके प्याले खाली भी हो गए, लेकिन दाऊद वापस ना आया। फिर वो एक एक करके उठने लगे। चूंकि आज शाम को वो पार्क ही में काफी थक गए थे, इसलिए इन्होंने खेल के कमरों का रुख नहीं किया था। इमरान और शादा साथ ही उठे और आगे पीछे कमरे से निकल गए। शादा तेज चलने की आदी थी, लेकिन इस वक्त वो आहिस्ता चल रही थी। इमरान इसके बराबर चलने लगा। तुम्हें क्या हो गया है? शादा गुस्सीले लहजे में बुड़बुड़ाई। 1 हफ्ते पहले बुखार हो गया था, अब अच्छा हूँ। जी हाँ, और जब मुझे बुखार होता है तो मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझे थपक थपक कर सुलाता रहे, मुझे मध्यम सुरों से हल्के हल्के गीत सुनाए। मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। आखिर तुम मुझे ये सब कुछ क्यों सुनाते हो? फिर किसे सुनाऊं? आप ही बता दीजिए। दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं किसी यतीम चमगादड़ की तरह दिन भर अपने जहन में उल्टा लटका रहता हूँ। तुम्हारी बातें बाज औकात बिल्कुल समझ में नहीं आती। ये मेरी बदनसीबी है, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। लेकिन तुमने पार्क में वो क्या हरकत की थी? मेरे पांव पर फूल क्यों डाले थे? कोई देख लेता तो क्या होता? इमरान ने बड़े बोलेपन से पूछा। फिर संजीदगी से कहने लगा, इसमें भी कोई बुराई है? मैं तो सोच रहा था कि किसी दिन दाऊद साहब की मौजूदगी में आपके पैरों पर फूलों के अंबार लगा दूंगा। कहीं दिमाग तो नहीं चल गया?
शादा बुना कर बोली, देखिए बस मैं आपके इसी लहजे से डरता हूँ। ऐसे मौके पर दिल चाहता है कि खूब चीख चीख कर रोऊं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शादा ने कहा। अच्छा, तो अब यहाँ से मेरी लाश ही जाएगी, इमरान ने कहा और झपट झपट कर दीवार से अपना सर टकराने लगा। अरे अरे, शादा बुखला गई। शायद वो डर भी रही थी कि कहीं कोई इधर ना आ निकले। हकीकतन दाऊद ही के आने के इम्कानात ज्यादा थे, क्योंकि इसका बेडरूम इसी राहदारी में था। वो झपट झपट कर इमरान को पकड़ने लगी, मगर इमरान पर तो जैसे दौरा पड़ गया था। अचानक करीब ही कहीं से कदमों की आवाज आई और शादा भाग कर एक कमरे में घुस गई और इमरान अपने दोनों हाथ पतलून की जेबों में डालकर साफ करने लगा, क्योंकि इनमें दीवार का चूना लग गया था। और ये हकीकत थी कि दीवार पर सर की बजाय इसके हाथ ही पड़ रहे थे, मगर इस अंदाज में कि वो शादा को सर टकराता ही नजर आ रहा था। कदमों की आवाज दूर होती गई और इस राहदारी में बदस्तूर सन्नाटा ही रहा। इमरान ने इस कमरे में झांका जहां शादा गई थी, लेकिन कमरा खाली था और दूसरी तरफ का दरवाजा खुला हुआ था। इस तरफ भी एक राहदारी थी और दूसरा दरवाजा इसी में खुलता था। इमरान चंद लम्हे वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर आगे बढ़ गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।